Hello friends, and once again welcome back to all in my YouTube channel Physics with Aravid. And today in this lecture we are going to start a new chapter of class 12th, chapter 7, alternating current. And as you all know that before going to start any chapter, we are discuss about the detailed syllabus. Okay, so let's start today. The first topic will be in this chapter is direct current. After then we will see alternating current. After then we will see average value. This is also known as mean value of alternating current. And after then we will see the fourth number of topic this chapter, RMS value of alternating current. After then we will see the fifth number of topic this chapter, phasor and phasor diagram. After then we will see AC current containing only resistor. We have only resistor and this resistor is connected to the AC circuit. Then what will be their phase diagram, phasor diagram, what will be the current equation, what will be their voltage equation, everything we will discuss under this topic. Similarly we will see the seventh number of topic on this chapter, AC circuit containing only inductor. Similarly we have also only inductor and this inductor is connected with the AC circuit. Then what will be the current equation, voltage equations, and what will be their phase diagram, phasor diagram, everything we will discuss. Similarly for capacitor we will see. Okay, after then we will discuss about the AC circuit containing resistor and inductor. Now we have the two type of component. One is that resistor and second is that inductor, and both are connected in series with the AC circuit. Then again we have to calculate the value of current equation, voltage equation, and we will see under this topic the phase diagram and phasor diagram. Similarly we have to discuss about the AC circuit containing the resistance and the capacitor. Again we have resistor and capacitor and both component will be connected in series. Then again we will see what will be the current equation and what will be their voltage equations, and phase diagram and phasor diagram also. Okay, after then we will see the another component connection combination between the inductor and capacitor. Similarly the 12th number of topic this chapter, this is AC current containing LCR. This is very important for your exam purpose. Your exam point of view, this topic is very important. This topic is not very important, but for this topic purpose we have to study all this topic. So again the 13th number of this chapter is resonance condition in LCR circuit. This is also very important topic of this chapter. Okay, the 14th number of topic on this chapter, this is power in an AC circuit and power factor. That means here we have to calculate the value of cos phi and the power, and we have to also calculate the average power. Okay, after then we will see wattless current. Probably this is we can say also important topic because sometime this is asked in your exam. Okay, after then we will see the AC generator. This is also very important topic of this chapter for your exam point of view. Okay, under this topic we will cover the some points like that: what is AC generator, how to produce AC current, and their working principle, use, everything we will discuss about that in this chapter. Okay, after then the 17th number of topic on this chapter, this is transformer. This is also very important topic for your exam point of view. Okay, under this topic we will discuss what is transfer, what is the use of transformer, how to create transformer, and what is their types, what is their formulas, like that relation between the EMF and current and number of turns, and the how to calculate the efficiency of transformer.
everything we will discuss about that in this topic. Okay, and last we will discuss the 18th number. This is the NCERT problem like the example and exercise. तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डायरेक्ट करंट। इसको हिंदी में दिष्ट धारा कहा जाता है, इसको हिंदी में दिष्ट धारा कहा जाता है। तो सबसे पहले डायरेक्ट करंट का हम लोग डेफिनेशन समझ लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है इसका। एन इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, देयर डायरेक्शन रिमेन द सेम इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट एक ऐसा करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड मतलब इसका जो क्वांटिटी है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। और अगर इसके डायरेक्शंस की बात करें तो इसका डायरेक्शन भी सेम होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। अगर पॉजिटिव से निगेटिव अगर एक करंट फ्लो होने लगा तो ये कंटिन्यू फ्लो होगा, ये वापस ऐसे ऐसे नहीं आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा, एक ही डायरेक्शन में ऐसे सीधा फ्लो होगा, ये ऐसे सीधा फ्लो होगा। ठीक है, तो इसी को बोला गया है डायरेक्शन सेम रहेगा और इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं सोर्स ऑफ डीसी करंट, सेल, बैटरी, डीसी जनरेटर। जिस सोर्स से हमको डीसी करंट मिलता है उसी को कहा जाता है सोर्स ऑफ डीसी करंट। जैसे कि सेल से जो करंट मिलता है हमको वो डीसी होता है, बैटरी से और जनरेटर से भी डीसी। जनरेटर जो है 2 टाइप के होते हैं, कुछ जनरेटर जो है हमको डीसी करंट देता है और कुछ जनरेटर जो है हमको एसी करंट देता है ना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इट कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू एसी लाइक इन्वर्टर। और डीसी करंट को हम लोग ईजिली एसी करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू द इन्वर्टर। जैसे कि हम लोग के घर में इन्वर्टर लगा रहता है, जब एसी करंट रहता है हमारे पास तो बैटरी को हम लोग चार्ज करते हैं, फिर बैटरी से हमको क्या मिलता है, डीसी करंट। तो हम लोग एक डिवाइस लगाते हैं जिसको इन्वर्टर कहते हैं, तो वो बैटरी का जो डीसी करंट है उसको वो एसी करंट में कन्वर्ट करके हमारे घर में सप्लाई करता है। आगे बात करते हैं, इट कैन बी आल्सो ट्रांसमिटेड अ लॉन्ग डिस्टेंस विथ सम लॉसेस। इसको हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट कर सकते हैं और इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो लॉस होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी करंट इज 0। डीसी करंट की जी फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो इसका फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 0 होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द फॉल्ट इन डीसी करंट में अगर कुछ फॉल्ट हो जाता है तो इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है ना। जैसे कि आपका बैटरी ख़राब हो गया तो उसको हम लोग रिपेयर नहीं करवा सकते, वो ख़राब हो गया मतलब हो गया। ठीक है, और ये डीसी करंट जो है बहुत डेंजर भी होता है। एसी करंट के कंपैरिजन में ये डीसी करंट से एसी करंट के कंपैरिजन में डीसी करंट जो है डेंजर होता है, ख़तरनाक होता है ना, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है कम ज़्यादा नहीं होता, कांस्टेंट होता है। डायरेक्शन सेम होता है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। इसी वजह से जब कोई इंसान इसमें चिपक जाता है तो एक ही बार में चिपक जाता है, जबकि एसी करंट में क्या होता है, करंट का मैग्नीट्यूड जो है कम ज़्यादा होता है, तो उसमें जब कम होता है उस दौरान हम अगर किसी को करंट लग गया है तो उस सिचुएशंस में जिस सेकंड में, जिस मिली सेकेंड में वो उसका वैल्यू कम होगा एसी करंट का, उसी टाइम हम लोग उसको सेव कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, इट इज़ चेंज देयर मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन इज सेम। ये तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीसी करंट, डीसी करंट का अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये कुछ इस प्रकार दिखता है। ये एक्स एक्सिस है, इधर हम लोग टाइम को रिप्रेजेंट किए हैं, ये वाई एक्सिस में वोल्टेज या करंट को रिप्रेजेंट किए हैं। तो यहाँ पर टाइम का वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ पर टाइम का वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ पर करंट का वैल्यू क्या है, इंक्रीज होते जाता है। सॉरी, ये कांस्टेंट है, करंट का वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। अगर टाइम का वैल्यू हम लोग मान लिया जाए यहाँ पर 2 सेकेंड ले तब भी यहाँ पर वहीं रहेगा। करंट का वैल्यू जैसे कि हम लोग यहाँ पर 2 एम्पियर कंसिडर कर ले तो 2 सेकेंड में भी 2 एम्पियर रहेगा, 4 सेकेंड में भी 2 एम्पियर रहेगा, 6 सेकेंड में भी ये 2 एम्पियर ही रहेगा। मतलब टाइम का वैल्यू कितना भी, टाइम का वैल्यू तो बढ़ता ही जाएगा, कभी घटता नहीं है। तो करंट का वैल्यू हर एक समय पर वही मिलेगा, सेम ही मिलेगा हमको। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, ये आप लोगों को किसी किसी बुक में कुछ इस प्रकार का भी डीसी करंट का ग्राफ देखने को मिल सकता है। तो याद रखिएगा, ये प्योर डीसी नहीं है, इसको रेक्टिफाइंग डीसी बोला जाता है। जब हम लोग एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करते हैं ना, तो तब हम लोग को इसी प्रकार का रेक्टिफाइंग ग्राफ देखने को मिलता है डीसी करंट का। ठीक है, इसको रेक्टिफाइंग करंट बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, आगे एसी करंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर डीसी करंट जो है कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट।
अल्टरनेटिंग करंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आप लोग के एग्ज़ाम में जो टॉपिक को आना है उस टॉपिक को करने के लिए इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वैसे तो हम लोग को अल्टरनेटिंग करंट को पहले पढ़ना था डीसी करंट से, लेकिन डीसी करंट क्या है, थोड़ा सा है, वो आपके सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन एसी करंट को पढ़ने से पहले डीसी करंट को जानना है, इसलिए कुछ पॉइंट उसमें डाल दिया हूँ। और अल्टरनेटिंग करंट को मैं सेकेंड पॉइंट में इसलिए डाला हूँ क्योंकि इसके अंदर में हमको बहुत सारे टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम लोग एसी करंट बोलते हैं, और इसी को हिंदी में कहा जाता है प्रत्यावर्ती धारा। इसी को हिंदी में कहा जाता है प्रत्यावर्ती धारा। चलिए आगे बात करते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट जो है डीसी करंट का जस्ट अपोजिट होता है। कैसे अपोजिट होता है? तो डीसी करंट में हमने कहा था कि उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, डायरेक्शन सेम होता है, तो ये उसका जस्ट अपोजिट है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, चेंज होता है बार बार, कभी मैक्सिमम होता है, कभी मिनिमम होता है, फिर मैक्सिमम होता है, फिर मिनिमम होता है। और अगर इसके डायरेक्शन की बात करें तो इसका डायरेक्शन भी चेंज होता है। और डायरेक्शन कैसे चेंज होता है, पीरियोडिकली चेंज होता है। पीरियोडिकली चेंज होने का मतलब है एक फिक्स टाइम के बाद, एक फिक्स टाइम के बाद इसका डायरेक्शन जो है अपोजिट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड होते रहता है। इसको हम लोग इस ग्राफ के जरिए समझेंगे। तो इसी टाइप के करंट को क्या कहा जाता है जी, अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड, करंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है, और उसका डायरेक्शन भी पीरियोडिकली चेंज होते रहता है। और अगर हम लोग एसी करंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो एसी करंट का ग्राफ हमको ऐसा मिल सकता है, जिसको हम लोग साइन वेव कहते हैं। कॉम्प्लेक्स वेव मिल सकता है जो कि आप लोग को कुछ ऐसा दिखेगा। ट्रायंगल वेव मिल सकता है जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। स्क्वायर वेव जैसे दिखेगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। और ये है साटिथ वेव। क्या है ये, साटिथ। यहाँ पर जो लिखा हुआ उसको मैं लिख देता हूँ, ये साटिथ वेव है, साटिथ वेव फॉर्म। तो इस फॉर्म में भी दिख सकता है। मतलब यहाँ पर मैं बोल दिया हूँ कि अल्टरनेटिंग करंट का जो डायरेक्शन है पीरियोडिकली चेंज होता है। मतलब आपको ऐसा ग्राफ दिखेगा जो कि पीरियोडिक मोशन होगा। और ऑलरेडी आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि कौन सा ग्राफ हमारा पीरियोडिक ग्राफ होता है और कौन सा नॉन पीरियोडिक होता है। तो जितने भी पीरियोडिक ग्राफ आप लोग देखें उन सभी प्रकार के अल्टरनेटिंग करंट हमारे पास पॉसिबल हो सकता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं वोल्टेज इक्वेशन फॉर अल्टरनेटिंग करंट। तो जैसे कि आप लोगों ने कभी ना कभी देखे होंगे कि V इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी, ऐसा कुछ वोल्टेज इक्वेशन होता है। या इसी को EMF फॉर्म में लिख देते हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 साइन ओमेगा टी, ऐसा लिख देते हैं। और करंट का इक्वेशन आप लोगों ने कभी ना कभी देखे होंगे, I0 साइन ओमेगा टी होता है। तो ये सब इक्वेशन आता कहाँ से है, ये सब इक्वेशन कहाँ से आता है, इसी को हम लोग आज डिराइव करने वाले हैं। तो इसको समझने से पहले आप लोगों को ये जानना पड़ेगा कि एसी करंट बनता कैसे है। तो एसी करंट कैसे बनता है याद रखिएगा। यहाँ पर एक मैग्नेट लिया जाता है और मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल को आर्मेचर के थ्रू रोटेट किया जाता है। और यहाँ पर इसको ऐसे सेटअप किया जाता है कि यहाँ पर करंट का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होता जाता है। तो उस कंटिन्यूअसली चेंज करने के लिए, उस डायरेक्शन को, करंट के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए यहाँ पर स्लिप रिंग का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि ऑलरेडी एसी जनरेटर में हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर कार्बन ब्रूस लगा रहता है। यहाँ पर इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं देना है हमको, यहाँ पर केवल इस कॉइल के रोटेशन में ध्यान देना है। जब ये कॉइल रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी मिलता है हमको, और इसी कॉइल के रोटेट करने की वजह से हमको एसी करंट मिलता है। क्योंकि ये कॉइल जो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है उसको बार बार उस फ्लक्स को ये चेंज करता है। तो चेंज करने की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, क्योंकि ये उस फ्लक्स का क्या करते हैं, अपोज करते हैं। इसीलिए उस ईएमएफ को बैक ईएमएफ भी कह देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर ओमेगा क्या चीज़ है, एंगुलर वेलोसिटी है। और ऑलरेडी हम लोग को पता है जब भी कोई कॉइल जो है किसी मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करते हैं तो उसका ईएमएफ क्या होता है, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब चूंकि हम लोग को फ्लक्स का डेफिनेशन पता है, फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा होता है, तो फ्लक्स का ये डेफिनेशन होता है। और हम लोग को ये भी पता है एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है जी, डब्ल्यू इज ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी होता है। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं, ओमेगा टी। इसलिए इस थीटा को मैं रिप्लेस कर देता हूँ ओमेगा टी के जरिए। अच्छा, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थीटा को ओमेगा टी से रिप्लेस करने की,
क्योंकि हम लोग अभी एसी करंट की बात कर रहे हैं और एसी करंट प्रोड्यूस होता है एंगुलर वेलोसिटी की वजह से, और एंगुलर वेलोसिटी मिलता है तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी मिलेगा, और वो रोटेशन जो है टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हम लोग को ओमेगा और टी को डिफाइन करना था एसी करंट के लिए, इसलिए तो फाई इज इक्वल्स टू हम लोग को मिल गया है बी ए कॉस ओमेगा टी। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। हम लोग को इक्वेशन नंबर क्या था, फैराडे लॉ को ही मैं इक्वेशन नंबर 1 दिया था, डी फाई अपॉन डी टी, ये इक्वेशन नंबर 1 था फैराडेज लॉ। तो यहाँ पर फाई का वैल्यू अगर मैं इसमें रखूँगा तो मुझे मिल जाएगा एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन डी टी बी ए कॉस ओमेगा टी। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बी ए को बाहर निकाल दूंगा और कॉस ओमेगा टी का जब मैं डिफ्रेंसिएशन करूँगा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कॉस ओमेगा टी का जब मैं डिफ्रेंसिएशन करूँगा तो क्या मिल जाएगा जी, कॉस का क्या होता है माइनस साइन ओमेगा टी होता है, और यहाँ पर ओमेगा टी का एक बार और डिफ्रेंसिएशन करूँगा, ओमेगा टी का एक बार और डिफ्रेंसिएशन करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये ओमेगा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिखा हूँ माइनस साइन ओमेगा टी डॉट ओमेगा। और फाइनली इसको मैं अरेंज करके लिख सकता हूँ, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ डब्ल्यू बी ए साइन ओमेगा टी, और इसी को फिर मॉडिफाई करके लिख दिया हूँ एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू मैं एप्सिलॉन 0 साइन ओमेगा टी, जहाँ पर एप्सिलॉन 0 क्या होता है, ओमेगा बी ए होता है, और ये होता है मैक्सिमम, इसी को कहा जाता है मैक्सिमम और पिक, मैक्सिमम और पिक ईएमएफ कहा जाता है, ईएमएफ और वोल्टेज कहा जाता है, और इसको कहा जाता है वोल्टेज का इक्वेशन, और यही चीज़ निकालना हमारा टारगेट था। एसी करंट के लिए वोल्टेज इक्वेशंस कैलकुलेट करना हमारा टारगेट था, और ये हम लोगों ने निकाल लिया, ये हम लोगों ने निकाल लिया। तो यहाँ पर एप्सिलॉन 0 को क्या कहा जाता है, पिक एंड मैक्सिमम ईएमएफ। इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 नोन एज ईएमएफ इक्वेशंस फॉर अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज इक्वेशन आल्सो। तो इसी इक्वेशंस को किसी किसी बुक में ऐसे लिखा रहता है v इज इक्वल्स टू v0 साइन ओमेगा टी, वो यही इक्वेशन है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब करंट इक्वेशंस की बात करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट के लिए करंट इक्वेशंस की बात करते हैं। वी हैव फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर, हम लोग को पता है, तो V को हम लोग एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, और एप्सिलॉन और V दोनों का वैल्यू है। जब इस वैल्यू या फिर इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा I इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 अपॉन आर साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर एप्सिलॉन 0 अपॉन आर को हम लोग लिख सकते हैं I0, ये हो जाएगा I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी, जहाँ पर I0 इज इक्वल्स टू क्या है, एप्सिलॉन 0 अपॉन आर। तो इस इक्वेशन नंबर 6 को कहा जाता है करंट इक्वेशंस फॉर अल्टरनेटिंग करंट, याद रखिएगा ये इक्वेशन को। और I0 को कहा जाता है अल्टरनेटिंग करंट के लिए करंट का मैक्सिमम वैल्यू या फिर पिक वैल्यू या फिर एम्पलीट्यूड कहा जाता है इसको। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं, चूंकि हम लोग को पता है ओमेगा को हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, इसको हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। कब कहेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो चूंकि हम लोग को पता है एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है थीटा अपॉन टी, और थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई और 1 अपॉन टी को लिख सकते हैं न्यू, क्योंकि हमको पता है जब इस स्मॉल टी को कैपिटल टी से रिप्लेस करेंगे तो हम लोग को फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन पता है, ये टाइम पीरियड को क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए। तो यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू हमको क्या मिल गया, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, इसी को कहा जाता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, क्योंकि हमको पता है न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टी होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को जो इक्वेशन नंबर, जो करंट का इक्वेशन मिला था, ये करंट का इक्वेशन मिला था और ये ईएमएफ का इक्वेशन मिला था। यहाँ पर अगर मैं ओमेगा का वैल्यू रख दूँ और इस स्मॉल टी को कैपिटल टी से रिप्लेस कर दूँ, तब मुझे क्या मिलेगा जी, तब मुझे वोल्टेज का इक्वेशन मिलेगा। वो कुछ ऐसा मिलेगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, और ये स्मॉल टी को कैपिटल टी से हम लोग रिप्लेस कर देंगे तो ये टी कट जाएगा और ये साइन 2 पाई हो जाएगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं किए हैं, ये हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से या टॉपिक के हिसाब से करेंगे। अभी बस आप लोग ये याद रखिएगा, जब हम लोग ओमेगा का वैल्यू रखेंगे, ओमेगा का ये वाला वैल्यू करंट इक्वेशन और वोल्टेज इक्वेशन में रखेंगे, तो वोल्टेज का इक्वेशन हमको कुछ इस प्रकार मिलेगा और करंट का इक्वेशन हम लोग को कुछ इस प्रकार मिलेगा, I इज इक्वल टू I0 साइन 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर नोट करके मैं लिख दिया हूँ कि
हेयर वी कैन यूज़ कॉस ओमेगा टी इन प्लेस ऑफ साइन ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी के जगह पर हम लोग साइन ओमेगा टी भी यूज़ कर सकते हैं। तो करंट इक्वेशन हम लोग को कैसे दिखने लगेगा, I इज इक्वल्स टू I0 कॉस ओमेगा टी, और I को यहाँ पर इंस्टेंटेनियस करंट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ये अल्टरनेटिंग करंट I का जो वैल्यू है इसको इंस्टेंटेनियस करंट भी कहा जाता है। इंस्टेंटेनियस करंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, और स्पेसिफिक टाइम के लिए या शॉर्ट टाइम के लिए, किसी भी टाइम के लिए, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए भी हम लोग करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। इस वजह से इसको इंस्टेंटेनियस करंट कहा जाता है। जिस प्रकार 11th या फिर 9th क्लास में आप लोग इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन पढ़े थे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़े थे, है ना, वैसे यहाँ पर इंस्टेंटेनियस करंट था। वहाँ पर हम लोग क्या करते थे, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए एक्सीलरेशन फाइंड आउट करते थे, जो हमको इक्वेशंस दिया रहता था उसको डिफ्रेंशिएट करके टाइम का वैल्यू पुट करते थे, तब हमको एक स्पेसिफिक टाइम के लिए हमको एक्सीलरेशन या फिर वेलोसिटी मिल जाता था। चलिए आगे बात करते हैं सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की। सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की अगर बात करें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल जनरेटर होता है। एक जनरेटर होता है जिसका नाम है हाइड्रो इलेक्ट्रिकल, दूसरा जनरेटर का नाम है थर्मल जनरेटर, और तीसरे जनरेटर का नाम है न्यूक्लियर पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिकल जनरेटर में क्या होता है, वाटर के थ्रू आर्मेचर को रोटेट किया जाता है, फिर वहाँ पर एसी करंट प्रोड्यूस होता है। जैसे कि बांध वगैरह होता है ना, डैम वगैरह, उसमें वाटर को इकट्ठा करके वाटर को सीधा आर्मेचर के ऊपर फॉल करवाया जाता है, फिर आर्मेचर रोटेट करने लगता है। सेकंड है थर्मल जनरेटर। थर्मल जनरेटर जिसमें स्टीम के थ्रू क्या करते हैं, जनरेटर को या आर्मेचर को रोटेट किया जाता है। तो स्टीम के थ्रू कैसे करते हैं, तो कोल होता है, कोयला होता है, इसको जलाते हैं, कोयला को जलाकर बहुत सारे छोटे छोटे पाइप में वाटर को भरकर रखे रहते हैं, फिर वाटर क्या करते हैं, स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, फिर स्टीम क्या करता है, प्रेशर प्रोड्यूस करता है। तो उस प्रेशर के थ्रू आर्मेचर जो है घूमने लगता है, रोटेट करने लगता है। अच्छा, एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, आर्मेचर। तो आर्मेचर का मतलब यहाँ ये है, आर्मेचर एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे कॉइल को वाउंड कर दिया जाता है, फिर उसको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ऐसा सेटअप किया जाता है कि जैसे उसके ऊपर प्रेशर पड़े वो रोटेट करने लगे। ठीक है। थर्ड होता है न्यूक्लियर पावर जनरेटर। ये एक स्पेशल प्रकार का जनरेटर होता है जिसमें न्यूक्लियर फ्यूल का यूज़ करके करंट प्रोड्यूस किया जाता है, एसी करंट, जैसे कि यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, इस टाइप का जो फ्यूल है उसका यूज़ करके एसी करंट प्रोड्यूस किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो जिस प्रकार डीसी करंट के कुछ प्रॉपर्टीज़ देखे थे, उसी प्रकार अल्टरनेटिंग करंट के भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। उन सभी को हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं, जिसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इट कैन ईजिली चेंज्ड इन डीसी यूजिंग ट्रांसफार्मर। अच्छा, यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग बहुत ही आसानी से डीसी करंट में चेंज कर सकते हैं, किसका यूज़ करके, ट्रांसफार्मर का। अब यहाँ पर इसका गलत मीनिंग मत समझ लेना कि ट्रांसफार्मर एसी को डीसी में चेंज करता है, ऐसा नहीं है। हम लोग एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज़ ज़रूर करते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर एसी को डीसी में चेंज नहीं करता है, ये बस वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम करता है। ठीक है। आगे बात करते हैं, इट इज़ वेरी इजी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द फॉल्ट इन एसी। ये डीसी का जस्ट अपोजिट है। डीसी ज़्यादा डेंजरस होता है और उसमें जो फॉल्ट रहता है उसको प्रोटेक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन एसी करंट में ऐसा नहीं है। एसी करंट बहुत इजी होता है, इसमें जो भी फॉल्ट होता है वो उसको करेक्ट करना बहुत इजी होता है। चलिए आगे बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, इट हैज़ 50 to 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग 50 से 60 हर्ट्ज के बीच का एसी करंट ज़्यादा यूज़ होता है ना। अलग अलग कंट्री की अलग अलग होती है, ये डिपेंड करता है कंट्री के ऊपर, है ना। चलिए फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, सिंबल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। सिंबल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो ये कुछ ऐसा दिखता है। अगर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इस प्रकार का सिंबल आप लोग को दिखे तो समझ जाना वहाँ पर एसी करंट की बात हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, फिफ्थ नंबर का टॉपिक है, एसी सिग्नल में बी ट्रेपेजॉइडल, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, साटिथ एंड साइन वेव, कॉस वेव। तो ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एसी सिग्नल का जो शेप है या साइज़ है वो कैसा हो सकता है, साइन वेव हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है,
कोसाइन हो सकता है, ट्रेपेजॉइडल हो सकता है, साटीथ, ये सभी को हम लोग देख चुके हैं स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन ऑफ एसी करंट में, है ना। 6 पॉइंट की बात करते हैं। इट यूज्ड इन लोड लाइक, ये एसी करंट का यूज सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पर किया जाता है, तो मोटर्स में किया जाता है, लाइट में किया जाता है, हीटिंग में किया जाता है, और इंडस्ट्री और हाउसेस में इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर एसी करंट से रिलेटेड सारा टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है, 3rd नंबर का टॉपिक है एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, या इसी को मीन वैल्यू कहा जाता है, लेकिन इस टॉपिक को हम लोग आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।